We are studying chapter molecular basis of inheritance, and in this chapter till now we have talked about transcription and translation and genetic code. Now all these processes are clear to you. Transcription, it is the formation of RNA on the template of DNA. Then translation, it is the formation of proteins, or we can say polypeptides, from this mRNA. This is known as translation. And then we talked about the genetic code, that they occur in the codons, they occur in triplets. Now our next topic is regulation of gene expression. Now it is clear to you that gene or DNA, first they form the RNA, and these RNAs they form the proteins, and these proteins they are responsible for the particular character or the phenotype. यानी कि डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए ने प्रोटीन्स बनाए, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. मीन्स दैट डीएनए इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ आफ्टर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स. बीच में कौन सा प्रोसेस आ गया? पहले ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद जो है व्हाट विल हैपन, दिस जीन which has produced the proteins, these proteins they will express themselves. So this is known as gene expression. Now the question comes, is there any need of expression of this gene? Always. कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जीन ने जो प्रोटीन प्रोड्यूस किया टू स्टेप्स से पास हो करके उस प्रोटीन की वहाँ ज़रूरत हो. सम टाइम देर इज़ नो नीड ऑफ दैट प्रोटीन और दैट कैरेक्टर. तो वहाँ पर क्या ज़रूरी है कि जो जीन है उसे एक कंट्रोल्ड वे में एक्सप्रेस करना, दैट इज़ नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. मीन्स वेन एवर देर इज़ नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन, particular protein, then that gene should express itself. And if it is not there, if there is no need of that particular protein, then that gene should not produce or should not express that particular, should not produce the gene or should not express the particular character. तो यानी कि जो gene expression है that should be in a controlled way, and that is known as gene expression. Regulation of gene expression means gene अपने आप को express करे एक controlled way में, and it is known as regulation of gene expression. Now we know that when proteins are formed, proteins in actual are formed when the पेप्टाइड बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स. यानी जो डेरिवेटिव्स हैं प्रोटीन्स के वो अमीनो एसिड्स हैं, और अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है दैट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड, दैट इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड. एंड व्हेन मेनी ऑफ दीज पेप्टाइड्स bonds are formed between these amino acids, this chain it is known as a polypeptide. So suppose this gene, it has produced this chain of polypeptides. क्योंकि जीन ने पहले क्या किया? जीन मीन्स डीएनए it will prepare, it will make RNA, and that RNA it will synthesize the proteins. यानी कि जो जीन है उसने अपने आप को क्या कर लिया है? एक्सप्रेस कर लिया है. इफ़ वी टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स जो जीन एक्सप्रेशन है ये डिफरेंट प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद हो पाता है. सो द फर्स्ट स्टेप इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, and in transcription what is formed? RNA from the DNA. Then this RNA it will form the proteins. So these are the different levels. We can control the gene expression at this level, or we can control the gene expression at this level. So we can say that in eukaryotes gene expression can be controlled at various levels or at several levels. How can we control? As we know that nucleus, it has DNA. Now this DNA it will form RNA, means transcription जो है it takes place inside the nucleus. So we can control at this level, we can control or we can stop the transcription, and there will be no synthesis of that particular mRNA, and there will be no expression of that gene. कोई प्रोटीन नहीं बनेगा क्योंकि mRNA ही नहीं बना तो जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ. यानी हमने फर्स्ट लेवल पर जब डीएनए ने आरएनए बनाना था इन द न्यूक्लियस, हमने फर्स्ट लेवल पर ही उसे क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया. सो वी कैन कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन व्हाट इट इज़? Transcription is the formation of RNA on the template of DNA. So
If there is no transcription, there will be no expression of gene, means there is no production of that particular protein. Now second is at processing level. Now all of you know what is processing level. As we know, this is the template of DNA, and what are synthesized as this template? RNAs are synthesized, and these RNAs, this strand is not continuous. जैसा कि हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि जो RNA strand है जो synthesize हो रहा है वो continuous नहीं है. It has some exons and introns. तो जो introns हैं they are of no use. So what is done? These introns are removed out from this mRNA strand, and then these exons they are joined together to form the continuous strand. तो इस प्रोसेस को हम ना इस स्टेप को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग लेवल और रेगुलेशन ऑफ स्प्लिसिंग. सो वी कैन कंट्रोल. हम यहाँ पर जो mRNA बना उसके जो एक्सोन और इंट्रॉन प्रेजेंट थे, अगर इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं होने देते हैं तो फिर क्या होगा? देयर विल बी नो जीन एक्सप्रेशन. सो मीन्स वी कैन कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन एट द प्रोसेसिंग लेवल. Then third is transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm. Now as we know that this mRNA, this is the cell, this is the nucleus, here is DNA. On this template of DNA, RNA is synthesized, and this RNA then it comes out of this nucleus. So what can be done? Now as we know that this RNA और mRNA it is synthesized inside the nucleus. अब जो mRNA से प्रोटीन बनने हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में. तो क्या होना है? जो mRNA सिंथेसाइज हुआ है इसे कहाँ आना है? साइटोप्लाज्म में. सो व्हाट वी कैन डू that we can regulate the gene expression at this level कि जो mRNA है जो सिंथेसाइज हुआ न्यूक्लियस में वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ना आ पाए. सो द थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. जब न्यूक्लियस से mRNA साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, एट दिस लेवल ऑल्सो वी कैन स्टॉप द जीन फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस्ड. And now the fourth is translational level. Now what is this translational level? Translation, we know that synthesis of proteins from the RNAs. So अगर हम suppose किसी reason के कारण when the gene was or the DNA was producing RNA, body जो है वो किसी reason से यहाँ पर gene expression को control नहीं कर पाई, then this can be controlled at this level also, which is known as translational level. इस लेवल पर भी हम जीन को एक्सप्रेस होने से रोक सकते हैं. So these are the various steps in eukaryotes or various steps in the eukaryotes where we can control the expression of gene regulation. Now genes in a cell are expressed to perform a particular function or set of functions. Yes, किसी भी सेल के अंदर जो जीन्स होते हैं, हो सकता है एक जीन एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा हो और द जीन में परफॉर्म अ सेट ऑफ और मीन्स मेनी ऑफ द फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय दैट जीन्स. नाउ फॉर एग्जांपल, देयर इज एन एंजाइम नेम्ड एज बीटा गैलेक्टोओसिडेज, एंड दिस बीटा गैलेक्टोओसिडेज इट इज present in the E. coli. E. coli is a bacterial cell, and this bacterial cell it has an enzyme named as beta galactooxidase. Now what is the function of this enzyme? It do the hydrolysis of disaccharide lactose. In actual lactose जो है ये एक sugar है and it is a disaccharide. As we know that disaccharide जो है ये क्या हो सकती है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मोनोसेकेराइड में. In actual this E. coli it is not able to break down this lactose क्योंकि ये क्या है, एक डाइसेकेराइड है और लैक्टोज को इसको ब्रेक डाउन या उसको क्या ज़रूरत है लैक्टोज की, बिकॉज इट इज़ द एनर्जी सोर्स. लेकिन बिकॉज इट इज़ अ डाइसेकेराइड सो इट कैन नॉट बी यूज्ड और यूटिलाइज्ड बाय द E. coli. सो व्हाट इज़ नेसेसरी that the hydrolysis of this lactose should be there, और ये lactose जो है it should be broken down into galactose and glucose. और ये जो break down है ये कब possible है? when there is this enzyme named as beta galactooxidase. So I think it is clear to you that E. coli
it has a source of energy as lactose. Lactose will provide the energy, but it is a disaccharide, so it cannot be utilized by E. coli. So its body produces an enzyme named as beta-galactosidase, and this beta-galactosidase, what it will do, it will break down the lactose into galactose and glucose, and these are the simpler forms, these are the monosaccharides. और इन मोनोसैकेराइड्स को अब ई कोलाई जो है वो इजीली एनर्जी कंजम्पशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जब ई कोलाई की बॉडी के पास लैक्टोज है, देन इट्स ओके कि वो क्या करेगी, इस एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी. बट सपोज देयर इज़ नो लैक्टोज, तो फिर इस एंजाइम की भी देयर इज़ नो नीड. सो इन दैट कंडीशन व्हाट इज़ देयर कि वहाँ पर इट्स बीटा गैलेक्टोऑसिडेज एंजाइम का प्रोडक्शन ना हो. सो इसके लिए क्या ज़रूरत होगी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, यानी वो जो जीन है वो पर्टिकुलर इस एंजाइम को प्रोड्यूस ना करे, बिकॉज दिस एंजाइम हैज़ टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द लैक्टोज एंड लैक्टोज इज नॉट देयर. सो देयर इज़ नीड ऑफ रेगुलेशन. यानी कि इन सिंपल टर्म्स व्हाट वी कैन से दैट किसी भी जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एंड दीज फैक्टर्स दे मे बी फिजिकल और दे मे बी environmental conditions may be there for the reason, physiological reasons may be there, or metabolic conditions may be there. Now for example, if we talk about the development and differentiation of embryo into adult organism, if we talk about the fertilization in human female, after fertilization what the zygote does, ये जो establishment करता है यूट्रस के साथ में, and at that time various hormones are produced. इन एन एक्चुअल व्हाट आर हॉर्मोन्स, वी हैव जस्ट टॉक्ड कि हॉर्मोन्स जो हैं और या फिर एंजाइम्स, दे आर प्रोटीन्स, एंड दीज प्रोटीन्स दे आर सिंथेसाइज्ड बाय RNA, एंड RNA इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द टेम्पलेट ऑफ DNA. सो द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर क्या होगा, जब एक एम्ब्रियो जो है वो एडल्ट में चेंज हो रहा है, एम्ब्रियो से फीटस में चेंज हो रहा है, मेनी ऑफ द हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन फीमेल, दैट इज HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स कि अगर सपोज इफ देयर इज नो एम्ब्रियो, इफ देयर इज नो फीटस, then there is no need of all these hormones. So at this time what is necessary, that there is a regulation of gene expression, क्योंकि इतने सारे जो hormones हैं उनको genes produce कर रहे हैं, और ये जो genes हैं they may produce, a single gene may produce many of the hormones, or a single gene may produce one hormone, but production of the hormones should be controlled depending upon the metabolic conditions, physiological conditions, and the environmental conditions. So this was about the eukaryotic cells. लेकिन if we talk about the prokaryotic cell, you know that prokaryotic cells do not have well defined boundary. उनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी कोई जो है बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. So what will happen in prokaryotes, this DNA is present scattered in the cell. Now when this DNA, these are the strands of DNA, now they will form the RNA strands, and these RNA now they will produce the proteins, but there is no nuclear membrane. तो क्या होगा कि जो जहाँ पर अभी RNA प्रोड्यूस हुए, एट द सेम टाइम प्रोटीन प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में तो RNA को क्या करना पड़ रहा था, इट वॉज कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस and it was combining with the ribosomes to produce the proteins. But in this prokaryotic cells, they do not have any nuclear membrane. So what will happen, this DNA it will form the RNA, और जैसे ही RNA form हो रहा है, parallelly RNA will start producing proteins. So we can say that in prokaryotes, control of the transcriptional initiation is predominant site for control of gene expression. Means जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पर अगर इफ़ वी वांट टू कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन, देन दैट शुड बी डन एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ओनली.
क्योंकि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ मीन्स आरएनए सिंथेसाइज हो गया एंड नाउ दिस आरएनए इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स. सो वी विल बी अनेबल और द प्रोकैरियोटिक सेल will not be able to control the expression of the gene. So what we can say that in prokaryotes this gene expression can be controlled at the transcriptional level only. Now in transcription unit what is there? RNA polymerase named enzyme is there. Now this RNA polymerase it is present it is the activity of the RNA polymerase. What it will do? It will bind with the promoter and then it will identify the site of attachment. Now what is there? If we talk about a transcription unit, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या होगा? दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. देयर इज अ प्रमोटर साइट. व्हाट हैपन्स? आरएनए पॉलीमरेज जो कि एक एंजाइम है इट बाइंड्स विद द प्रमोटर साइट और उसके बाद क्या सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है? आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है. लेकिन अलॉन्ग विद दिस एंजाइम एंड दिस प्रमोटर साइट कुछ और भी जो है रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स दे मे एक्ट एज एक्टिवेटर्स और दे मे एक्ट एज रिप्रेसर. मीन्स अगर जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो जीन एक्सप्रेशन में हेल्प कर रहे हैं देन दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स. लेकिन अगर जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने दे रहे प्रमोटर के साथ में देन इट इज़ कॉल्ड एज रिप्रेसर और नेगेटिव इफेक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग. अब यहाँ पर जो प्रमोटर रीजन के साथ में जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं उनकी इंटरेक्शन होती है एंड द ग्रुप ऑफ ऑल दीज प्रोटीन्स इट इज़ टर्म्ड एज ऑपरेटर्स. और ऑपरेटर रीजन के जस्ट पास में जो है क्या प्रेजेंट है? इट विल बाइंड. नाउ व्हाट विल हैपन कि जो प्रमोटर रीजन है प्रमोटर रीजन पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो बाइंड करेगा और बाइंड होने के बाद में जो है इट विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग आरएनए. यहाँ पर एक ऑपरेटर रीजन है. ऑपरेटर्स की हमने बात की कि ऑपरेटर्स मीन्स जहाँ पर इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. ऑपरेटर रीजन जस्ट एडजेसेंट है किसके? प्रमोटर के. एज वी आर एबल टू सी हेयर इट इज़ द ऑपरेटर रीजन एंड इट इज़ अ प्रमोटर. हेयर ऑल्सो इट इज़ अ प्रमोटर. तो क्या होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो ऑपरेटर रीजन है इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू द प्रमोटर रीजन. प्रमोटर रीजन के पास ही ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट है और इसीलिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो ऑपरेटर है इट बाइंड्स विद द रिप्रेसर प्रोटीन. नाउ यहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन है this is a repressor mRNA and this repressor in actual what it does it binds with the operator region. In most of the cases this happens. और अब एक चीज़ और each operon has its specific operator and specific repressor. हर एक operon का जो है एक अपना particular क्या होगा? एक एक्टिव ऑपरेटर होगा और एक स्पेसिफिक रिप्रेसर होगा. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लैक ऑपेरॉन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लैक ऑपेरॉन. व्हाट इज दैट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैक ऑपेरॉन. लैक ऑपेरॉन. लैक मीन्स लैक्टोज एंड ऑपेरॉन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपेरॉन? ऑपेरॉन को समझने के लिए वी विल हैव अ लुक ऑन दिस. यहाँ पर जो भी पूरी यूनिट दिखा रखी है इस पोर्शन को अदर देन प्रमोटर को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स दे फॉर्म द ऑपेरॉन. सो अदर देन द प्रमोटर ऑल द साइट्स दे फॉर्म ऑपेरॉन. नाउ लैक ऑपेरॉन मीन्स लैक्टोज जो है एक शुगर है एंड लैक ऑपेरॉन मीन्स यहाँ पर किस तरह से जो लैक्टोज है उसकी जो एक्सप्रेशन है जो लैक्टोज है वो ब्रेक होगा डाइजेस्ट होगा और किस तरह से जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यानी डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत है. वी विल स्टडी अबाउट दैट. नाउ लैक ऑपेरॉन इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ जेनेटिस्ट Francois Jacob and a biochemist Monod. Both of them they told or they gave the expression about the
दिस लैक ऑपेरॉन, इन्होंने क्या किया, एक जो है ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है। एंड इन लैक ऑपेरॉन, क्योंकि यहाँ पर ये ई कोलाई की बात हो रही है, सो दिस लैक ऑपेरॉन इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द प्रोकैरियोट्स। एंड इन प्रोकैरियोट्स व्हाट वी हैव स्टडीड कि जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो पैरेलली ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। सो डीएनए जो है वो डायरेक्टली नेक्ड प्रेजेंट है सेल के अंदर। सो डीएनए से आरएनए बनेगा एंड अलोंग विद द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन विल आल्सो बी सिंथेसाइज्ड। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जैकब इसने and this monad, both of them they told about the expression of this lac operon. अब यहाँ जो lac operon है ये एक polycistronic structural gene है. Now what is the meaning of polycistronic structural gene? Polycistronic structural gene means a gene which is able to express for many of the proteins, then that is called as polycistronic gene. And what is monocistronic gene? A gene which is responsible for the production of only one protein. तो यहाँ पर जो है we are talking about the prokaryotes, और prokaryotes they have polycistronic structural genes, means these structural genes they are able to produce more than one type of proteins. So in lac operon, polycistronic structural gene it is regulated by a common promoter and regulatory genes. तो एक ऑपेरॉन में अभी जस्ट हमने बात की थी कि क्या क्या होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स होते हैं और एक कॉमन प्रमोटर होते हैं। इन सारे रेगुलेटरी जीन्स को कौन बाइंड करके या कौन रेगुलेट करके रखता है? एक प्रमोटर। सो व्हाट वी विल से दैट ऑल द रेगुलेटरी जीन्स associated with the promoter then they form the operon. And as we are talking about the lactose sugar, so this is known as lac operons. There are many of the examples of these operons: lac operon, trip operon, ara operon, his operon and well operon. These are the names of the amino acids: valine, histine, all these are the amino acids. And these amino acids now they join and they form the proteins. So they are coding for the synthesis of particular proteins. Now this lac operon it consists of one regulatory gene. I gene जो है यहाँ पर इंड्यूसर नहीं है बल्कि इट इज़ वर्किंग जो है एज एन इनहिबिटर। तो एक रेगुलेटरी जीन होगा। इसके अलावा जो है 3 structural genes will be there: Z, Y and A. These are the 3 structural genes. Now what are the functions of these 3 genes Z, Y and A, as we are able to see in the diagram? This is the I gene which is called as now in gene expression topic what we studied कि जो promoter है, promoter RNA polymerase promoter के साथ जुड़ता है और फिर उसके बाद में जो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस। लेकिन फिर हमने पढ़ा था कि वहाँ कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं दे मे वर्क एज अ प्रमोटर और दे मे एक्ट एज अ रिप्रेसर। तो यहाँ पर जो ये आई जीन है जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन या रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, जो कि क्या करेगा, इट मे वर्क एज अ रिप्रेसर और इट मे वर्क एज इन दिस इनहिबिटर एक्टिवेटर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लैक ऑपेरॉन स्ट्रक्चर। इसके पास एक प्रमोटर है, प्रमोटर के साथ कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट हैं एंड दीज स्ट्रक्चरल जीन्स इन एक्चुअल दे आर द इनहिबिटर्स। और इसके अलावा जो हैं 3 structural genes Z, Y and A are present. Now this I gene it codes for the repressor, क्योंकि यहाँ पर जो ये I जीन है ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेसर के लिए काम कर रहा है। इट इज़ कोडिंग फॉर द रिप्रेसर। नाउ Z जीन इट इज़ कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोऑक्सीडेज। हमने पढ़ा था कि लैक ऑपेरॉन या लैक्टोज की डाइजेशन के लिए लैक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड शुगर है और इसे मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए we are in the need of an enzyme and the name of the enzyme is beta galactooxidase, and this beta galactooxidase it is coded by the gene Z. Now next is the Y gene.
This Y gene, what it will do, it codes as for the permease. The next enzyme is permease. So Z, it is coding for beta galactooxidase. बीटा गैलेक्टोऑक्सीडेज क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक कर देगा, किसके अंदर, उसके अंदर गैलेक्टोज के अंदर एंड ग्लूकोज के अंदर. सो नाउ नेक्स्ट इज वाई जीन विच इज़ कोडिंग फॉर परमेज. परमेज एक एंजाइम है जो कि परमेबिलिटी बढ़ा देता है सेल की. ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरियल सेल है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है. किसके लिए, ताकि जो बीटा गैलेक्टोऑक्सीडेज है वो उसके अंदर एंटर कर सके. एंड नाउ द नेक्स्ट इज ए जीन. दिस ए जीन इट इज़ कोडिंग फॉर ट्रांस एसिटिलेज. सो दीज आर द 3 जीन्स विच आर कोडिंग फॉर 3 डिफरेंट एंजाइम्स. नाउ जो 3 जीन्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है, इन तीनों जीन्स के जो प्रोडक्ट है, बीटा गैलेक्टोऑक्सीडेज वी कैन से परमेज एंड ट्रांस एसिटिलेज, जो इन तीनों जीन्स के जो प्रोडक्ट हैं, नाउ दे आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म और द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज. In most other operons as well, genes present in the operon are needed together to function. यानी यहाँ पर all these 3 genes they are producing their products, और इनके जो सबके प्रोडक्ट्स हैं वो मिलकर के उस पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं. तो यहाँ पर लैक ऑपेरॉन में क्या हो रहा है, लैक्टोज ब्रेक डाउन हो रहा है. सो दीज 3 एंजाइम्स देयर प्रोडक्ट टुगेदर विल हेल्प इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लैक ऑपेरॉन. अब इस लैक ऑपेरॉन को वर्क करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज लैक्टोज. सो वी कैन से दैट लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट and for which enzyme, beta galactooxidase, and it is regulating or it regulates switching on and off of the operon. What is the meaning of this? कि यहाँ पर अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, if lactose is there then only there is the need of the enzyme beta galactooxidase. So lactose की जो प्रेजेंस है वो क्या करेगी, लैक ऑपेरॉन को ऑन कर देती है. एंड इफ लैक्टोज इज नॉट देयर नियर दिस ई कोलाई सेल देन दिस विल गेट ऑफ. यहाँ पर जो है, क्योंकि फिर हमें बीटा गैलेक्टोऑक्सीडेज एंजाइम की ज़रूरत ही नहीं है. सो दिस लैक ऑपेरॉन विल नॉट वर्क इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. सो वी कैन से लैक्टोज इज द इंड्यूसर हेयर, इट इज़ द सबस्ट्रेट हेयर, and on this substrate this enzyme will act, and that's why it is called as lactose is known as inducer. If there is no lactose, means there is no carbon source such as glucose etc. Now what will happen, this lactose which is present in the growth medium of the bacteria, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने क्या बात की थी कि सपोज ये एक ई कोलाई की सेल है, दिस इज द सेल ऑफ ई कोलाई. अगर इसके पास ग्लूकोज है then there is no need of beta galactooxidase, क्योंकि ग्लूकोज को रेडिली ये सेल यूज़ कर लेगी. बट सपोज देयर इज़ नो ग्लूकोज विद द सेल, दिस इज़ ई कोलाई, देयर इज़ नो ग्लूकोज विद इट एंड इन द सराउंडिंग लैक्टोज इज प्रेजेंट. सो दिस लैक्टोज इट विल एंटर इनटू द सेल ऑफ द ई कोलाई. किसके कारण, बिकॉज ऑफ द एंजाइम परमेज विच वॉज सिक्रेटेड बाय वाई कोलाई, वाई जीन. इसके बाद जो Z है इट विल प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोऑक्सीडेज एंड दिस लैक्टोज इट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. सो यहाँ पर जो है ग्लूकोज की एब्सेंस में लैक्टोज जो है इट विल एंटर, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स परमेज के एक्शन के कारण. और यहाँ पर जो है हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल्स. अगर लैक्टोज का लेवल जो है बहुत कम है देन ओनली इट विल बी एबल टू एंटर इनटू द दिस सेल ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरिया. नाउ द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपेरॉन. अब क्या होगा, बिकॉज in the E. coli, what has entered? Lactose has entered. Now this lactose यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में, एंजाइम बीटा गैलेक्टोऑक्सीडेज और परमेज ने अपना वर्क कर दिया. अब जो है इसको वर्क करना है लैक ऑपेरॉन को. किस तरह से ये वर्क करेगा,
This is the structure. What we are able to see, the repressor protein binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. So what we have seen here, जो I gene, which is known as inhibitory gene, it is producing repressor mRNA. This repressor mRNA, it is modifying into repressor. Now this repressor, it is binding with the operational site, और जिसके कारण जो है now this RNA polymerase, it is not able to join with the promoter site. और जब ये प्रमोटर साइट के साथ एंजाइम ज्वाइन ही नहीं हुआ, there will be no transcription. But in the second case, what is there? This inhibitory gene, it has produced the repressor mRNA. Now it is modified into repressor. अब ये जो रिप्रेसर है, इट हैज़ ज्वाइंड विद द इंड्यूसर, और इंड्यूसर क्या है यहाँ पर, लैक्टोज, और बिकॉज ऑफ द चेंज इन शेप इट इज़ नॉट एबल टू ज्वाइन विद द ऑपरेशनल साइट. और अब जब ऑपरेशनल साइट के साथ कुछ ज्वाइन नहीं हुआ, सो आरएनए पॉलीमरेज इट इज़ ज्वाइनिंग विद द प्रमोटर साइट, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंटिन्यू हो रही है. एज वी आर एबल टू सी हेयर दैट दिस लैक mRNA and this Z, it is responsible for the enzyme beta galactooxidase, Y is producing enzyme permease, and then A is producing transacetylase, and in this way transcription will carry on, and in the presence of inducer lac mRNA will be synthesized. क्यों? क्योंकि जो प्रमोटर है इसके साथ कौन ज्वाइन कर पा रहा है, RNA polymerase. Why? Because the operational site is free.